Hi! Keep looking up, and that's the secret of life. Up also stands for UP, Uttar Pradesh, and Uttarakhand, which are the flavor this week from a multilingual, futuristic, dystopian sci-fi thriller set in 2898 AD Kashi to probing a first murder in 15 years in quaint Rautu in Uttarakhand. And brace yourself for Bhokal in Mirzapur. Indian cinema is primed to scale new heights. There's also a fine foreign film from the past that will pique your interest. I'm Atika Farooqui, you're watching Now Showing, and here are the headlines. The South travels to the North as we review writer-director Nag Ashwin's epic extravaganza, Kalki 2898 AD. We chatted with Nawazuddin Siddiqui, who has to unravel Rautu Ka Raz in his upcoming film. Brace yourself for Bhokal in Mirzapur 3 as we chatted with Kaleen Bhaiya, that is Pankaj Tripathi, Rasika Duggal and more. Well, let's begin with the big release of the week. Director Nag Ashwin's Kalki 2898 AD boldly intertwines the timeless tales of the Mahabharata with a dystopian sci-fi universe set in the distant future. Emphasizing that heroes are forged by circumstances rather than birthright, the film casts Amitabh Bachchan as the immortal Ashwathama, pitting him against Prabhas's Bhairava in a cosmic battle awaiting the arrival of Kalki, Vishnu's prophesied final avatar. With audacious creative choices and breathtaking visuals, Kalki 2898 AD reimagines the classic struggle between good and evil. Set 6 centuries after the Kurukshetra war, the film unfolds across 3 mysterious realms: Kashi, Complex and Shambhala. Kashi stands as the last bastion against the tyranny of God King Supreme Yaskin, played by Kamal Haasan, whose dominion extends from the hovering complex and ominous inverted pyramid. Yaskin's malevolent ambition centers on extracting a serum from a pivotal figure, a fertile woman held captive within the complex. In this volatile landscape, Sum 80, that is Deepika Padukone, known as Sumathi, escapes from complex while pregnant, pursued by the relentless bounty hunter Bhairava, that is Prabhas, and his AI droid companion BUJZ-1, voiced by Kirti Suresh. Bhairava's mission intertwines fatefully with Ashwathama, Amitabh Bachchan here, an ancient warrior sworn to protect Sumathi, who carries the unborn Kalki, the prophesied savior destined to cleanse the world of darkness and restore equilibrium. The first half of Kalki 2898 AD unfolds leisurely, punctuated by laser-filled skirmishes that, while visually stunning, may leave viewers seeking deeper emotional resonance and clearer character motivations. The narrative introduces several pivotal characters without fully contextualizing their roles, initially clouding the plot's trajectory amidst the action. However, the film gains momentum in its latter half, delivering captivating sequences and well-choreographed action set pieces. The climactic confrontations between Prabhas and formidable Mr. Bachchan stand out, culminating in a thrilling final showdown that elevates the film's stakes and narrative coherence. The film's extensive ensemble is anchored by standout performances from Prabhas, whose portrayal of Bhairava evolves from a charismatic bounty hunter to a pivotal figure in the cosmic struggle. Amitabh Bachchan brings gravitas to Ashwathama, seamlessly transitioning between youthful vigor and sage wisdom, particularly in his dynamic interactions with Prabhas. Deepika Padukone imbues Sumathi with emotional depth, embodying the burdens and destinies intertwined within her character. Kamal Haasan's brief yet impactful portrayal of Yaskin commands attention, supported by Shobhana's wise Mariam and Saswata Chatterjee's nuanced portrayal of Commander Manas. Visually, Kalki 2898 AD is a marvel, showcasing world-class VFX that transport audiences into its sprawling dystopian universe. Grandiose sets and meticulously crafted robotic characters complement the film's futuristic aesthetic, enhanced by stunning cinematography and Nitin Zihani Chaudhary's meticulous production design. Santosh Narayan's musical score blends traditional influences with modern gaming-inspired compositions, underscoring the film's thematic depth and dramatic tension. While the soundtrack
may require acclimatization. Its innovative approach adds a distinct layer to the cinematic experience. Despite occasional narrative complexities and pacing issues, Kalki 2898 AD stands as a monumental achievement in Indian cinema. Commendable for its audacious storytelling, visual spectacle, and ambitious fusion of mythological lore with futuristic themes. Director Nag Ashwin's vision, supported by a stellar cast and technical prowess, offers audiences a cinematic odyssey that defies norms and sparks the imagination, a testament to the dynamic evolution of Indian filmmaking. I strongly suggest that you do watch Kalki with family in theatres. And now moving on. Nawazuddin Siddiqui, the man from Budhana, Uttar Pradesh, is no stranger to scaling new peaks. In 2015, he moved the mountain as Dashrath Manjhi. 9 years later, he submits himself to the tranquility of Rautu Ki Beli village, located somewhere in the Himalayan state of Uttarakhand. But there is a first murder in 15 years that needs probing. खून, फरेब, लालच, भ्रष्टाचार, don't worry, सारे राज खोलेगा तेरा ये दीपक नेगी. We chatted with Nawazuddin Siddiqui about his film Rautu Ka Raaz and why an actor must go to the mountains. नवाज, आपका जो अगला प्रोजेक्ट है वो है, ये रौतू है, रोतलू है, राउतू क्या है? राउतू का राज. ये राउतू मीन रावत. हाँ. राउतू की बेली नाम था. हाँ. बेली गांव. हाँ. राउतू की बेली, रावतों का गांव. तो हमने उसको चेंज करके राउतू का राज कर दिया. तो ये ऐसी कोई जगह है क्या उत्तराखंड में? जगह है. हाँ. जब मैंने इसका ट्रेलर देखा, राउतू का राज का ट्रेलर देखा, तो मुझे लगा something that will not make me more tense and nervous, but will make me more relaxed and easy. तो जब एक एक्टर एक ऐसे एनवायरनमेंट में एक्ट भी करता है, जैसे हम जैसे ही बॉम्बे से बाहर जाते हैं ना, अगर मैं राजधानी में होती हूँ और गाड़ी जैसे ही बॉम्बे से बाहर जाती है, वो हरियाली और रास्ते धीरे-धीरे आपका स्ट्रेस फुर हो जाता है. आई थिंक वो भी एक कैरेक्टर होता है और बहुत असर करता है. एक्टर्स के परफॉर्मेंस पे भी असर करता है और लाइफ पे भी असर करता है वो माहौल. अगर आप, मैं कहूँ आपसे कि अगर एक साल आप ऐसी जगह पे रहने लगिए तो आपको शहरों से डर लगने लगे. फास्ट पेस, हर आदमी, क्योंकि आप शहर में ना नौकर बन जाते हैं. छोटे छोटे गांव कस्बों में आप ऑनरशिप होती है आपकी. अगर आपको 5 घंटा यहाँ बैठना है तो वो अलाउ करता है, वो माहौल अलाउड करता है आपको कि आप बैठ सकते हैं, क्योंकि आप अपनी मर्जी के मालिक हैं. लेकिन शहर में नहीं बैठ सकते 5 घंटा. आप धूप सेक रहे हैं तो पहाड़ों में धूप ही सेक रहे हैं, लकड़ी जला के सेक रहे हैं तो सेक रहे हैं, छाछ पी रहे हैं तो छाछ पी रहे हैं, पिए जा रहे हैं. कोई टाइम की पाबंदी नहीं है, जबरदस्ती नहीं है. लेकिन क्योंकि प्रेशर नहीं है ना मालिक का. कभी कभी जैसा ये होता है कि यार शहरों में तो ज्यादातर जो है नौकर रहते हैं, गांव कस्बों में मालिक रहते हैं. ये इसका फर्क, इसकी वजह से स्ट्रेस नहीं होता गांव में, कस्बों में. तभी ज्यादा जीते हैं गांव के लोग. बेफिक्री एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है आज के जमाने में. हम लोग तो सुबह 10 से 11 और शाम के 5 से 6 बजे पूरी जिंदगी निकल जाती है, उसी में निकल जाती है. और ट्रैफिक आपका हर काम जिंदगी का ना ट्रैफिक के एग्जैक्टली उस पे बेस होता है. मेरा तो हम तो फिल्मों के काम की वजह से बाहर जाते हैं, यहीं बम्बई में कहीं जा रहे हैं तो मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ किसी भी डायरेक्टर को, ये जो फिल्म मुझे बहुत अच्छी लग रही है ये फिल्म, लेकिन इसका शूट कहाँ करोगे वो बता दो पहले मुझे आप. अगर बम्बई में करोगे तो आई एम सॉरी. रियली? हाँ, मैं नहीं करना चाहता हूँ शूट. बम्बई की ट्रैफिक में 3 घंटा जाने के लग रहे हैं, आपको 3 घंटा आने के लग रहे हैं. 9 घंटा फिल्म की शूटिंग चल रही है, उसके बाद सोने का टाइम कहाँ मिलेगा आपको? तो ये बड़ा दुखदाई है एक्चुअली. मैं 6 घंटा अगर ट्रैफिक में दे रहा हूँ, 6 घंटा अगर मैं ऐसी जगह पे शूट करूँ, मैं परफॉर्मेंस में जमीन आसमान का फर्क हो जाता है. बिल्कुल. अगर जब बाहर करते हैं. अच्छा, दूसरा ये कि 25 पेज की डायलॉग दे दीजिए, आप इमीडिएटली याद हो जाते हैं ऐसी पहाड़ों वाली जगह में. सही. यहाँ पे 1 पेज का डायलॉग मुश्किल हो जाता है याद करना. सही. ये है चिंता और तनाव में. हाँ, अच्छे से एग्जैक्टली नहीं परफॉर्म कर ही नहीं सकते आप. तो इसमें मैंने देखा कि आपके साथ एक तो राजेश हैं जो रोसेश नाम का कैरेक्टर बहुत
बहुत सालों तक उन्होंने निभाया, बड़े अच्छे एक्टर हैं। बहुत अच्छा हमारे actor। साथ एक प्रॉब्लम ये है इंडियन एंटरटेनमेंट सीन में कि कॉमेडी करने वाले एक्टर्स को बहुत कद्दावर एक्टर मानते ही नहीं है। लोगों को लगता है मतलब एकदम ट्रेजेडी करेंगे तो आप एक्टर हैं बहुत बड़े, और हाँ अगर आप बहुत साल तक आपने बहुत हल्की फुल्की कॉमेडी की है तो ठीक है, मतलब डू यू फील लाइक दैट, है हाँ ना? हाँ, बिल्कुल इफेक्ट है, बिल्कुल हाँ सही बात कह रही हैं आप। हाँ, ये कुछ हीरोज ने अपने नाम सारी चीजें लिखवा ली कि हम हम अगर हीरो रोमांस, हैं तो हम हम ड्रामा। रोमांस भी बहुत अच्छा करते हैं, करेक्ट। हम एक्टिंग भी बहुत अच्छा करते हैं, हम ट्रेजेडी भी बहुत अच्छा करते हैं। वरना अगर एज एन एक्टर मुझे अगर पसंद, मुझे राजेश तो बहुत पसंद है ही, हाँ हाँ। मुझे राजपाल भी बहुत पसंद है, लेकिन इनके साथ एक अनफॉर्चुनेटली एक चीज जुड़ी हुई है कि इनको बोल दिया जाता है कॉमेडियन। नहीं, कॉमेडियन नहीं, टाइमिंग बहुत करेक्ट है उनकी, उनकी टाइमिंग बहुत ऐप है। करेक्ट। वो अगर आप ट्रेजेडी भी अच्छा, कुछ लोगों का यहाँ पे मानना ये भी है कि टाइमिंग सिर्फ कॉमेडी में होती है। नहीं, इंसान की लाइफ में भी टाइमिंग होती है। सही बात है। बात, आप किसी की बात को आप जब सुनते हैं इरिटेट करती है, क्योंकि वो रिदम नहीं है उसके पास टाइमिंग नहीं है, इसलिए इरिटेट कर रहा है वो आपको, बिना टाइमिंग के बोल रहा है आपसे, बहुत सही। आप इरिटेट हो जाते हैं। लेकिन जिन लोगों को रिदम के बारे में मालूम है, वो चाहे ट्रेजेडी हो चाहे नॉर्मल कन्वर्सेशन हो, वो इंटरेस्टिंग लगती है, क्योंकि उनके पास टाइमिंग की सेंस है और रिदम है उनके पास। ये सही सही, बहुत बहुत अच्छी बात बोली। तो इस जॉनरा की एक दिलचस्प बात ये है कि ये एक अलग जॉनरा है, ये वो हड्डी वाला ड्रामा नहीं है, मर्डर मिस्ट्री है, लेकिन इसमें डेथ को ह्यूमर से जोड़ा हुआ है। जैसे जाने भी दो यारों में हमने देखा था कि वो लाश लिए लिए कभी यहाँ कभी वहां, अब वो है तो बेचारी लाश लेकिन हम हंस रहे हैं। तो ये जो डार्क ह्यूमर है कभी कभी बहुत मजा देता है, और यही इसमें भी आप कह रहे हैं। इसमें एक लाइन है कि अपराध मुक्त जगह है। तो जब मैंने ये लाइन सुनी तो मैंने सोचा सबसे पहले तो बताइए हिंदुस्तान में ऐसी कौन सी जगह है जो अपराध मुक्त है, एक, और दूसरा अपराध तो किसी भी डिग्री का हो सकता है। मेरा अगर कोई पेन चुरा ले नवाज तो एफआईआर तो उसमें भी बनती है, दिल टूटे तो भी अपराध, घर टूटे तो भी अपराध। दिल टूटने भी एफआईआर बनती है क्या? सास की? कहीं ना कहीं कोई ना कोई पेज तो निकलेगा। आजकल जो है ना बड़े बड़े कानून ऐसे चल चुके हैं कि अगर आपने जरा सा भी ये कर दिया तो ये एफआईआर, इस तरह की एफआईआर हो जाए। तो थोड़ा सा मुझे जानकारी रखना जरूरी है। लॉ पढ़ा है आपने? मैंने नहीं पढ़ा। अब मुझे लगता है पढ़ लेना चाहिए था, कितना काम आता है। हाँ, अब पढ़ना चाहिए, आज के टाइम में काहे को पढ़ना चाहिए? इतने छोटे छोटे से वो निकल पड़े ना। अरे सुना कि किसी लड़की की तरफ थोड़ा देर तक देख भी लें तो भी उस पर भी एफआईआर हो सकती है, ऐसा है क्या? मुझे लगता नहीं है। एक कहावत है कि योर फ्रीडम एंड्स वेयर माय नोज बिगिंस। कभी क्या होता है कि एक्टर किसी एक प्रोजेक्ट से ना लेकर वापस लौटता है कुछ कुछ, इससे क्या लेकर लौटे आप? साइलेंस। मैं इससे साइलेंस लेके लौटा कि यार कितना साइलेंस कितना खूबसूरत होता है, यू नो। वो पहाड़ों में नजर आता है, या तो ये दूर दराज के जो छोटे छोटे गांव कस्बे होते हैं वहां पे नजर आता है। हम लोग साइलेंस से इतना डर चुके हैं ना, अगर मैं आपके साथ बैठा हूँ 2 मिनट तक चुपचाप बैठ जाऊं, आपको भी डर लगने लगेगा, मुझे भी लगने लगेगा कि क्या करेगा भाई, क्या कुछ बोल नहीं रहा है, पागल है क्या? ये इतना अजीब सा होगा, आपको बोलना ही पड़ता है, यू नो। और कैसे हैं आप, बाकी सब ठीक है? हाँ ठीक है, ये वो, अच्छा चाय पियोगे, ये वो। अब मैं 2 मिनट साइलेंस हो जाऊं तो आपको लगेगा निकल लो यहाँ से, टाइप में ऐसा लगता है। अब आप इसको, यार क्या एक्टिंग है, वो शायद इसलिए लग सकता है क्योंकि हम लोग यूज टू नहीं उस तरह की एक्टिंग देंगे। हम तामा झामा, ये वो जहाज, ये वो गाने फाने और एक्शन सीक्वेंस देखने के आदी हैं। बिल्कुल। अचानक से एक स्लो पेस की पिक्चर आपकी चल रही है जिसमें बहुत देर के बाद डायलॉग आता है, कभी आता है कभी नहीं आता है। ये ऐसी फिल्म है कि धीरे धीरे आपको ना ऐसे पहाड़ की तरह ऐसे सक करती है अपने अंदर। हाँ, आप सही कह रहे हैं। आई थिंक मुझे लगता है कि कुछ एक्टर्स हैं जो इस रेस से बिल्कुल अलग हो चुके हैं, बॉक्स ऑफिस के रेस से। लाइक फॉर एग्जांपल मनोज भाई हैं। मनोज भाई को अगर आप ये बोलेंगे कि मनोज भाई आपकी फिल्म का तो इतने करोड़, इतना ही हुआ है, लाख ही हुआ, करोड़ हुआ है, 5 करोड़ 10 करोड़ हुआ, तो बहुत बेमानी सवाल है उनसे ये कहना। सही कह रहे हैं। वो इससे बहुत ऊपर उठ चुके हैं। सिर्फ उस आदमी का आप सिर्फ एक्सपेरिमेंट देखिए, वो हर तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वो उस रेस में, वो रेस भी उनको कुछ अफेक्ट नहीं कर पाए। बॉक्स ऑफिस की जो रेस होती है ना, जिसके गुलाम बने रहते हैं, बिल्कुल, वो मनोज बाजपेयी का कुछ नहीं उखाड़ पाई। आज भी मनोज भाई ग्रेट एक्टर है, बिल्कुल, और हमेशा रहेगा, और पहले भी था वो। आप किन चीजों से ऊपर उठ चुके हैं एज एन एक्टर? हम भी चाह रहे हैं इसी चीज से हम भी ऊपर उठे, इस तरह की रेस से दूर रहे। हम चाहते हैं कि भाई हमारी एक ऑनेस्ट फिल्म हो, छोटी सी फिल्म हो, ऑनेस्ट फिल्म हो, जिसपे हम एक्सपेरिमेंट करने का हमें मौका मिले, बस दैट्स इट, यही है।
बाकी ये हमारे जिम्मे नहीं है, हमारे प्रोड्यूसर जो है वो देखें कि इसको आपको थिएटर में रिलीज करनी है। सही। हमारा इसमें कोई योगदान नहीं है। हम्म। अगर बॉक्स ऑफिस का जो योगदान है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रोड्यूसर्स का होता है। आप हमारी फिल्म या मनोज भाई की फिल्म 5000 स्क्रीन पे लगा के देखिए, तो दुनिया देखना चाहती है उनको। सही बात है, ये बात बिल्कुल सही है। अगर हर घर के आगे मनोज वाजपेयी होंगे ना सही। तो पूरी दुनिया देखेगी। अनफॉर्चुनेटली चाहे वो इरफान भाई हो चाहे मनोज भाई हो, इन लोगों की फिल्में 5-5, 6-6 हजार स्क्रीन पर रिलीज ही नहीं हुई कभी। तो उनको बॉक्स ऑफिस से आंकना मेरे ख्याल से उनकी आर्ट को बहुत छोटा कर देना है, बहुत तौहीन करना है, तौहीन करना है। आप देखिए छोटी फिल्में, हिंदुस्तान की छोटी फिल्मों ने ही हाँ, हिंदुस्तान का दुनिया में नाम रोशन किया। बिल्कुल, बड़ी फिल्मों ने किया। बिल्कुल। कैन में मंथन नहीं, शुरू से हाँ, कभी हमेशा, बिल्कुल हमेशा। We're heading for a short break now, but break के बाद मिर्जापुर 3 के कालीन भैया तशरीफ ला रहे हैं। I will be in conversation with Pankaj Tripathi and the entire team. After the break, please don't go away. Welcome back to Now Showing. I'm Atika Farooqi. Now let's talk about the world of Mirzapur 3. While growing up, we were told कभी किसी की बेइज्जती मत करना। दुनिया की कई बड़ी जंगें सिर्फ बेइज्जती का बदला लेने के लिए लड़ी गई थीं। Hence, insult leads to vengeance, vengeance leads to wars. Mirzapur is a world which is always warring in itself. तो क्या कालीन भैया तैयार हैं गुड्डू पंडित की बगावत के लिए? Well, Pankaj Tripathi is back in the role of the central character, Kaleen Bhaiya. I speak to him on how, despite playing a Don in so many films, how every time he does it differently. And what's new this time, in conversation with the cast and the director. अब मिर्जापुर में मैं आपको कालीन भाई को इतने सालों से देख रही हूँ, मेरे ख्याल से 5-6 साल हो गए हैं। प्रोटैगनिस्ट भी आप हैं, एंटैगनिस्ट भी हैं, और एक अजीब सी फाइन लाइन ट्रेड करते हैं। वही चेहरा है और अपर बॉडी कैमरा आपके ऊपर रहता है। बताइए क्या ऐसा करते हैं कि हर शॉट अलग लगता है और आपका किरदार गुड़गांव से अलग लगता है। आप लूडो में भी लगभग इसी तरह का कैरेक्टर था, लेकिन ये मिर्जापुर का कालीन भाई हमेशा अलग लगता है। जी देखिए, ये बताना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी इसमें मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में एक किताब है जो आई थिंक 2,500-3 हज़ार साल पहले लिखी गई थी। उसमें अभिनय के 4 प्रकार हैं, आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। तो सात्विक पार्ट जो है ना वो सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो दिखता नहीं है। आंगिक दिखता है बॉडी के थ्रू, क्या बात है, पोस्चर जेस्चर के थ्रू आंगिक एक्टिंग दिखती है। वाचिक सुनाई देती है, और अगर आप इंजीनियर हैं, साउंड इंजीनियर, तो दिखाई भी देती है वो वेव्स। आहार्य जो हमने धारण किया है कॉस्ट्यूम, वो दिखता है। सात्विक एक्टिंग दिखती नहीं है, वो सिर्फ महसूस होती है। तो वो जो आपने सवाल किया कि वो क्या बात है जो गुड़गांव का डॉन और मिर्ज़ापुर का डॉन या सत्तू भैया लुड्डो के, ये 3 मेरे डॉन किरदार हैं, वो मुख्तलिफ क्यों होते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ सात्विक अभिनय के बदौलत होते हैं। कई सारे एक वर्ल्ड अगर चल जाए ना तो हमेशा उसका सीक्वल लाना चाहते हैं, चाहे फिल्म हो चाहे, बट एक कीड़ा है टू कम बैक बिगर एंड बेटर। अब उस चक्कर में यूपी में कहावत है कि वो ज़्यादा गुड़ डालोगे ना तो रेसिपी ख़राब हो जाएगी। और कई डायरेक्टर्स इस बात को समझ नहीं पाते, और अगर वायलेंट शो है तो ज़्यादा वायलेंस, और अगर उसमें कुछ इंटीमेट सीन्स हैं तो और इंटीमेसी। उस चक्कर में जो एक फैमिली ऑडियंस है, कि ख़ास तरह की ऑडियंस ने एक ख़ास तरह का पेस जो पकड़ा होता है ना, वो डिस्टर्ब हो जाता है। कितना समान या फिर कितना डिफरेंट होगा पहले से? बेटर तो देखने वाले बताएंगे। अगर हम ही बोलेंगे तो फिर वो हमें जवाब अगर पहले से ही पता हो तो फिर बनाने वाले की कहीं ना कहीं उसने फिर शॉर्टकट लिया है। तो आई थिंक हम कोशिश यही करते हैं कि शायद रिजल्ट पे ध्यान ना दें बनाते टाइम। कोशिश आई थिंक हर बार, चाहे मिर्ज़ापुर हो या कुछ और भी बना रहे हो, और आई थिंक पूरे ग्रुप का यही मानना है कि प्रोसेस पे फोकस करते हैं। आज का बेस्ट फुट फॉरवर्ड लेके चलते हैं कि लिखते टाइम जो लग रहा है कि ये इस कहानी के लिए बेस्ट रूट होगा वो लेते हैं, ना कि ये सोच के कि ये कहानी बेस्ट रिसीव होगी। दैट इज़ द ओनली मंत्र दैट वी फॉलो। उम्मीद
हमेशा बिगर बेटर की है। यू नो रसिका, इस सीरीज में ना पंक्चुएशन बहुत बड़ा हीरो है। एक आपका लास्ट सीन था एक एपिसोड में जिसमें आप अपने पेट पे हाथ रख के एज अ प्रेग्नेंट वुमन कहती हैं तुम भी सरवाइव करो, हम भी सरवाइव करेंगे। इन दिस शो लेस इज मोर, देयर इज नथिंग लाउड और वर्बोज, दैट्स द हीरो। It's a very Draupadi kind of a look also, you know, कि there is this केश quality, you know, something, एक गुस्सा उसके केश से जुड़ा है शायद। There is a, लिखने वाले ने शायद कहीं तो एक वो है एंगल। But what do you think? ये क्यों इतना चला कैरेक्टर? पता नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरी एक्साइटमेंट यही थी कि मुझे एक बहुत ही अलग किरदार करने का मौका मिल रहा है। इस मिर्ज़ापुर के ठीक पहले मैंने मंटो किया था जो कि बहुत ही अलग कैरेक्टर था, और इसमें पहली बार मुझे लगा कि इसकी फ़िज़िकैलिटी ऐसी है जो मेरी फ़िज़िकैलिटी से बिल्कुल ही अलग है। सो वो मेरे लिए एक एक्साइटमेंट का रीज़न था। और मैं डर सा गई थी कि मैं इस फिज़िकलिटी को अपना बना पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि इसमें मुझे वो एक्स्ट्रा कोशिश करने की ज़रूरत है जहाँ मैं कहीं अंदर से, कहीं किसी थॉट से उस फिज़िकलिटी को अपनी बॉडी में ला पाऊँ। उल्टा मुझे लगा कि अगर मैं बाहर से सोचूं कि मैं ऐसे खड़ी होंगी और ऐसे करूंगी और ऐसे, तो वो कभी वर्क नहीं करता है। वो कोई भी अच्छा एक्टर आपको बता देगा कि वैसे कैरेक्टर ज़्यादातर वर्क नहीं करते। अगर वैसा प्रोसेस फॉलो करना हो तो बहुत मेहनत लगती है, वो अलग प्रोसेस होता है। तो मुझे उस चीज़ की थोड़ी नर्वसनेस थी, लेकिन कभी ऐसा नहीं सोचा था कि कैरेक्टर का इम्पैक्ट क्या होगा। बट आई एम वेरी हैप्पी अबाउट द वे दैट इट्स गॉन। आई फील कि लोग इस कैरेक्टर के साथ कहीं बहुत मैनिपुलेटिव कैरेक्टर है, बहुत सारी गेम्स खेल रही हैं, लेकिन फिर भी लोग उससे रिलेट भी कर पा रहे हैं, क्योंकि कहीं वो उस मैनिपुलेशंस की और उस खेल की कोई इंटरनल कनेक्शंस शायद राइटिंग में बनी हुई हैं और परफॉर्मेंस में भी आई हैं। एक बड़ा अच्छा सीन था, कहते हैं कि मैन ऑफ द मैच को बाहुबली जैसा दिखने की ज़रूरत नहीं होती है। एक सीन था जिसमें अली फजल आपको ऐसे उठा, एंड ही इज़ दिस ह्यूज गाय, और आपको उठा के ऐसे करते हैं तो आप कहते हैं कि उछल के मारे मत करो, कमरा छोटा है, उछल के मारेंगे यहीं गिर जाओगे। लेडीज लोग हैं पास में, बाहर चल के तो आपको लग जाएगी, बाहर आओ। द मोस्ट ब्यूटीफुल कैरेक्टर्स रिटन है एनीवे इन वेब सीरीज। मुझे लगता है एक रॉबिन का कैरेक्टर लिखना जिसके कोई बैकग्राउंड नहीं है, ये दुकान चलाता है अपनी, इसकी मम्मी कौन है हमें नहीं पता, ना इसको पता है ना मुझे पता है। मैं अपना एक अजम्पशंस लेके चलता था। मुझे याद है श्वेता मुझे मिली थी और मुझे बोलती कि तू सीन वर्क करेगा। मैंने बोला नहीं, खेलते हैं, देखते हैं, वहीं पे देखते हैं क्या होगा। फिर मैंने वो जब लाइन भी डाली, ये भी ठीक है, वो कभी स्क्रिप्ट में नहीं थी, प्लान नहीं थी। नहीं, मैं इनके पास आया था, मैंने कहा मुझे इसका कैरेक्टर ना एक तकिया कलाम चाहिए। मेरे चाचा जी बहुत ऐसे बाय गॉड यूपी उत्तराखंड पहाड़ों में होता है ऐसा, हर चीज के लिए बाय गॉड ऐसा हो गया, पता है, बाय गॉड ऐसा हो गया, हर तरीका उनका अलग होता था। वो बाय गॉड का मतलब अलग था। आप जितनी बार देखोगे ये भी ठीक है का मतलब अलग है। मैं जितनी बार यूज करता हूँ, इस बार भी जब गुड्डू मेरे सामने आता है, हाँ, वो जब गुड्डू भी आते हैं मेरे सामने, तो मेरे सामने बल नहीं चलता, उसका कुछ है। गोलू भी एक सीन में गन रखती है सामने, बोलता है फट गई, बोलती नहीं, और एक खुले से बोलता नहीं, आप जैसे बहुत आते हैं हमारे सामने। मुझे लगता है लोगों की सबसे बड़ी वीकनेस जो पैसा है, एक तो ये उसके पास है, सबका ब्लैक का वाइट ये कराता है, तो इसको डरने की जरूरत क्या है। त्यागी इसके पास आता है ब्लैक का वाइट कराने सब कुछ। तो आई फेल्ट लॉट ऑफ, आई थिंक उसकी स्ट्रेंथ वो सब थी कि लोगों की वीकनेसेस इसको पता थी। Anjum, I've seen you in so many different projects. Somehow you fit beautifully well in this one. इनके शक्ल पे इतना कुछ किया जा सकता है एज अ डायरेक्टर। ये श्रूड भी लग सकते हैं, बहुत पढ़े लिखे कन्नाइविंग बिजनेसमैन भी लग सकते हैं। वो जो है आपका कैरेक्टर की छोटे शहर का है, लेकिन पढ़ा लिखा डॉन टाइप का है। अंदर एक विशेष क्वालिटी है, बट देयर इज अ सर्टेन पॉलिश टू दैट। ये एक ऐसा किरदार है, और मेरा ख्याल है वाहिद एक ऐसा किरदार है पूरे मिर्ज़ापुर की दुनिया में जो इस दुनिया में अपनी मर्जी से नहीं आया है, चॉइस से नहीं आया है, वो परिस्थिति से आया है, लेकिन उसे सर्वाइव करना है। तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑलरेडी आपका बहुत बड़ा है। बिल्कुल। तो एक बहुत ही बारीक लाइन थी जिसपे मैं और गुरु अक्सर बात करते थे कि यार ये प्रोटैगनिस्ट नहीं है, लेकिन ये एंटैगनिस्ट भी नहीं लगना चाहिए। और दूसरा किरदार में मुझे ये चीज़ लगी, जैसे मुझे लगता है कि, और ये मतलब जो आपने देखा भी, चाहे आप गॉडफादर की बात करें या सारी चीज़ें, स्ट्रक्चरली हम ये किरदार पहले देख चुके हैं, और ये मुझे पता था कि ये चीज़ की एक माफिया और डॉन इस दुनिया का
उनका बेटा जो बहुत अक्लमंद है, जो शायद अगर इस दुनिया में हो तो वो सबसे ऊपर होगा, लेकिन वो नहीं है। लेकिन अब अगर वो आए तो क्या होगा, ये उसका स्ट्रक्चर था। वो कम बोलेगा, बहुत कुछ इंटरप्रिटेशन पे छोड़ा जाएगा ऑडियंस के कि वो क्या चल रहा है, ये सारी चीजें। तो ये 2-3 चॉइसेस थी जो लेके आगे बढ़ते गए और किरदार इंटरेस्टिंग होता गया। और ऑब्वियसली वो राइटिंग और गुरु का उसमें बहुत बड़ा आता है। इतने सालों तक जब आप एक किरदार करते हैं तो वो एक एक्टर की एक जर्नी होती है, अपने पर्सनल सफ़र पे होता है, और एक कैरेक्टर की भी जर्नी होती है। अब ये दोनों जर्नीज जब सेट पे मिल जाती हैं तो वो थोड़ा सा तालमेल मिलाने में गड़बड़ हो जाती है। मैं तो भूल जाता हूँ। तो मुझे याद है, आई थिंक 2nd या 3rd सीजन में इन्होंने पहले दिन की शूटिंग में आके बोला कि कालीन भैया ऐसे नहीं है। बोले फिर कैसे हैं? तो सीन दिखाया। नहीं, पर उन्हें उनका एक्चुअली स्विच है पंकज जी का। और अब तो मतलब शायद सीजन 2 में हो सकता है, पर इस बार जब थे, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद आए थे, तो लिटरली बस उनको वही याद दिलाना था, हमारा एक्चुअली एक ही चीट कोड है कि पता नहीं चलना चाहिए बाहर से कि कालीन भैया हाँ बोल रहे हैं ना बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। वो इमीडिएटली स्विच कर जाते हैं उसमें। तो लिटरली उनको फिर याद आ जाता है कि वो मेरी मसल मेमोरी ये थी। और पंकज जी की खासियत है, मतलब जैसे हम पहले भी थोड़ी देर पहले वो कह रहे थे कि सीन से पहले हमारे जो भी सीन साथ में तो कि भाई क्या हो रहा है इसके पहले और ये वो, और मुझे लगता था अच्छा ठीक है, बड़ी जेन्युइन तरीके से जैसे ये। और जैसे ही शॉट शुरू हो और वो ऐसा कुछ करे, लगता है कि आप क्या मेरा मजाक उड़ा रहे थे ये पूछ के कि ये इसमें क्या हो रहा है। ये साथ में है तो मुझे मालूम है स्क्रिप्ट पता नहीं इसके पहले क्या हुआ, कहाँ से आए हैं ये। हाँ, ये लाइटिंग चल रही है, गुरु अपने फ्रेमिंग में लगे हैं, तो मैं बता क्या अच्छा हाँ वो ये हुआ था, अच्छा ठीक है। What goes up has to come down. It's been a roller coaster ride this week. War, murder, carnage. Let that be limited to cinema only. And let's create a reality that's pleasant, soothing and peaceful. शेर अर्ज है, हाथों की लकीरों पे मत जा ए गालिब, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। वाह! Make your destiny with a positive mind. I'm Atika Farooqi saying bye to you till we meet again. Ta-da!